Once again, welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry classes. Students, in this video we are going to discuss about the microwave spectroscopy or generally rotational spectroscopy भी बोलते हैं इसको आप. This spectroscopy is discovered by the Clayton and Williamson in 1934 और इसका जो frequency range होता है हमारा वो होता है 3 to 300 GHz and the wavelength ranges is from 0.1 to 30 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन रेंज में देखेंगे तो ये माइक्रोवेव रीजन आपका कहाँ पर होता है? इट जनरली लाइज बिटवीन द योर फार इंफ्रारेड रीजन एंड आवर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन. अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपका माइक्रोवेव किधर है? इट लाइज बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड योर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस आज के वीडियो में हम लोग वो डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं. द हेल्प ऑफ इट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनर्जी. मीन्स हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोई भी हमारा जब मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज HCl है ना, तो जब ये मॉलिक्यूल हमारा रोटेशन मोशन करेंगे तो इसमें एनर्जी लेवल्स जो हमको मिलेंगे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, हाउ मच एनर्जी दे विल एब्जॉर्ब एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस आर नीडेड for a molecule to jump from one rotational level to another rotational level. So now let us start our derivation part. So students, better you can take a pen and paper. So just I have written the theory also because आपके लिए easy हो जाएगा नोट्स में लिखने के लिए. तो सबसे पहले हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसको 2 वेज में कंसिडर करते हैं. फर्स्ट एज ए रिजिड रोटेटर एंड अदर पार्ट विल बी योर मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज ए नॉन रिजिड रोटेटर. तो रिजिड रोटेटर का मीन्स क्या होता है? ये जो आपका बॉन्ड है, सपोज दिस इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, this is A atom, this is B atom, and the bond between these A and B is rigid, means it's very stiff, means it is not easy to move easily. Okay, और ये जो हमारे दो एटम्स है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एंड दे आर बैलेंस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी G. मीन्स ये G पॉइंट पे बैलेंस करे हुए हैं और A और B का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल r. A से G1 तक का डिस्टेंस है r1 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट center of gravity to our this point, center of the B atom, center of the nuclei is R2. So R is equals to R1 plus R2. So just you can read the theory as rotational energy along with the other forms of molecular energy is quantized. Means as we know that all the forms of energy are quantized, so this is, and rotational energy is also quantized. They will have certain fixed energy levels known as the rotational energy levels, and to calculate the rotational energy we solve the Schrodinger wave equation. Generally आपने पढ़ा है ना quantum mechanics में, for any small particles we need to calculate the energy with the help of Schrodinger wave equation. So here also we will study. So now let us, a diatomic molecule be simple linear molecule consisting of 2 atoms. ये सब आपने डिस्कस कर लिया, m1 and m2, and they are balanced at the center of gravity G. your bond, जो भी आपका ये bond है A से B तक, ये आपका इसका डिस्टेंस R है, which is very stiff और rigid. and ऐसा diatomic molecule, इसी को हम क्या बोलते हैं? rigid rotator बोलते हैं. The center of gravity G of the molecule is fixed and it's have a free axis of rotation. Now, for example, for explaining the pure rotational spectra, consider a diatomic molecule AB which are joined by rigid bar of length R. Mass of A is m1, m2. So I hope this language is easy for you. You can write in your notes. So let us start. First of all, what we have to consider as given now, R is equals to R1 plus R2. We can just write it as a, first we can calculate for any one. So R2 length calculate करने के लिए क्या हो जाएगा? R minus R1. So R1 and R2 are the distance of atom A and B from the center of gravity G. So AB can freely rotates on the axis, and in this case the moment of inertia I is equals to m1 R1 square plus m2 r2 square. So this equation, what is this I? It is the moment of inertia. What is the moment of inertia? Whenever you are moving, so some force which is resisting you to move in forward direction, that is the dragging, means that force which is dragging you back, that is known as the moment of inertia. So here I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square. So next what we can write, and we know that the system is balanced at the center of gravity G, so we can write m1 r1 is equals to m2 r2.
as you are saying that this is balanced at the center of gravity, so m1 r1 will be equals to m2 r2. So here what we can do, substituting this value means m1 r1 we will put in the equation number 2. So what you will get, we can write it as m1 r1 r1 plus m2 r2 r2. Okay, so just open the squares. So what we can replace, m1 r1 from m2 r2 and m2 r2 from m1 r1. So we can have, taking r1 and r2 common, in this both we have r1 r2 r1 r2, so we will take them outside. So what you will get, I is equals to m1 plus m2. So from equation number 3 we have what we have taken, m1 r1 is equals to m2 r2. So now we will put the value of r2, as we have the value of r2. What is r2, as we have taken in the beginning, r2 is equals to r minus r1 from this equation number 1, because r is the total of r1 and r2. So we will put the value of r2 as r minus r1. So when we will put the value of r2 as a r minus r1, so what you will get, m2 r minus m2 r1, and so what you will get after this, we will have m2 r minus m2 r1, and what will be here, m1 r1 m2 r minus m2 r1. So what we will do, we will take r1 factors one side, r1 terms one side, so we will have m1 r1, this is plus, so it will go minus, so it will, sorry, it is minus sign when it will change the sides, plus m2 r1 equals to m2 r. So now what you have to take on r1 as a common into m1 plus m2 is equals to m2 r. So by arranging this, what you will get, r1 is equals to m2 into r by m1 upon m2. This term will come downside, so what you will get, r1 is equals to m2 upon m1 plus m2 into r. Similarly, as we calculated for r1, we will have calculations for r2 also. So what you will get, r2 is equals to m1 r m1 plus m2. So both these values give equation number 6. Now putting the values of this in equation number 2, that is r1 and r2. So just what was our equation number 2? Equation number 2 was moment of inertia I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square. So what is r1 value? So r1 value is m2 by m1 plus m2 into r, and r2 is m1 r by m1 m2, m1 plus m2. So just square both the terms. So what you have to do, just squaring both the terms. So what you will get, m1 m2 square r square by m1 plus m2 square plus m2 into m1 square r square by m1 plus m2. Now just we have to solve them. So what you will write, just we can write it as m1 m2 square plus m1 square and m2, and we can take in both the terms our r2 common, r square common by m1 plus m2. Now see what we can do in this step. First of all, we can, as both the denominators are common, so we will take only one term and just do the simple addition. So what it will be, m1 m2 square and r2 is common, r square is common in both, so take out it is a common, and we can write in this way. And next step what we will do, we will just open them, means m2 square है ना, so क्या लिखेंगे आप, m1 m2 into m2 plus m1 m1 into m2, and r square is there by m1 plus m2 square. So I hope this is clear. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, m1 m2 आपने क्या किया है, यहाँ पर m1 और m2 को कॉमन ले लिया, m1 m2 इन दो टर्म्स कॉमन ले लिया, एंड इन द ब्रैकेट सो यू विल हैव अगेन m1 प्लस m2. तो यहाँ पर and by r into r square by m1 plus m2 whole square. So write this m1 m2 two times. So what it will happen, it will cancel each other, and you will get I is equals to m1 into m2 by m1 plus m2
or r square. So this m1 m2 by m1 plus m2 r square is known as the moment of inertia, and this value m1 m2 by m1 plus m2 is represented by a new term, that is our reduced mass mu, and this is the formula for the moment of inertia, that is I is equals to mu r square. So we have give it equation number 9 as this I had given equation number 8. So this is the moment of inertia in the terms of atomic masses and the bond length. I hope आपको समझ आया होगा. Now what you have to do, just we have calculated the value of I is equals to mu r square, and now as we have discussed earlier, rotational energy of a diatomic molecule which behave as a rigid rotator can be calculated by solving the Schrodinger wave equation. So Schrodinger wave equation of motion for the rotational, we have the new quantum number, that is our J. So energy of डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि आपका एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव कर रहा है, उसके लिए हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर क्या होता है, ई जे इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1 जूल है. यहाँ पर जे का कोई भी वैल्यू हो सकता है आपका. जे इज इक्वल्स टू 0. जैसे सपोज आपने यहाँ पे हमने वैल्यूज दे रखी है, जैसे फर्स्ट रोटेशनल लेवल है 0 1 2 3. सो जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा. नाउ where h is a Planck's constant, I is the moment of inertia, and j is a rotational quantum number. तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे हमारे को रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए वैल्यू मिलेगी. सो व्हाट वी विल डू इट लाइक, so as first we will, the value of energy is given in the joule, so we have to convert this joule into centimeter inverse. So what we will do, as we discussed earlier, that our microwave spectra is given in the centimeter inverse, so wave number units आपको लेना पड़ती है. so यहाँ पे हमको जूल को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में. तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा Eg होता है, मीन सिंपल एनर्जी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, बिकॉज रोटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसमें जे लिख रहे हैं ना. सो न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है आपका, वेव लेंथ होता है, और 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, हमारा न्यू बार होता है ना, ये आपको पता है वेव नंबर है ना. सो वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा. तो इधर हम 1 बाय लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, न्यू बार. तो आपका क्या हो जाएगा रिलेशन, ई जे इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार. एंड नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस, व्हाट वी हैव टू डू, सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ई जे बाय एच सी इज इक्वल्स टू न्यू बार. रीअरेंज करेंगे एंड दिस न्यू बार यूनिट्स विल बी इन द सेंटीमीटर इनवर्स. मीन्स आपको क्या करना है, अगर हमें न्यू बार कैलकुलेट करना है तो ई जे का जो वैल्यू है उसको हमको एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, वी हैव टू राइट द ई जे डिवाइडेड बाय एच सी. सो ई जे क्या है आपका, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय एच सी. तो क्या हो जाएगा आपका, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, न्यू आर इज इक्वल्स टू ई जे इक्वल्स टू एच जे इंटू जे प्लस 1 बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपका जो एनर्जी वैल्यूज था वो आप किस में आ गया बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में. और यहाँ पर हमारा जो सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और जे हमारा 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. देन अभी एक चीज और है कि जब हम लोग जूल्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एनर्जी को, तब हमने कैपिटल ई से लिया था. नाउ व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी in the terms of centimeter inverse, then we have to replace our capital E by the epsilon terms. So we can write it as nu bar is equals to epsilon j is equals to h upon 8 pi square ic j into j plus 1 centimeter inverse. I hope this is clear to you. So we can just rewrite it once again. Nu bar is equals to ej is equals to h upon 8 pi square ic. This h upon 8 pi square ic is known as a new constant, rotational constant. So we can replace all this term with the help of a b, and we can write it as a nu bar is equals to epsilon j is equals to bj into j plus 1 centimeter inverse, where b is a rotational constant. okay, तो फाइनली आपको इस डेरिवेशन में यही कैलकुलेट करना था. ओके, न्यू बार और हमारा जो एनर्जी है फॉर ए रोटेशनल एनर्जी लेवल कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1. नाउ उसको हम सॉल्व करेंगे. जैसे कि इधर मैंने बहुत सारे रोटेशनल लेवल बनाए हैं कि मॉलिक्यूल हमारा भी फर्स्ट 0 रोटेशनल लेवल पे था ना, 0 से 1 2 3 4, देयर कैन बी सो मैनी रोटेशनल लेवल. तो जब हमारा
जे का वैल्यू कितना दिया है, 0 है, तब हमारा ई जे का वैल्यू कितना आएगा, आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या दिया है, ई जे इज इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपने जे की जगह क्या रखोगे, 0, तो क्या मिल जाएगा आपको, जब हमारा जे इज इक्वल्स टू 0 है तो ई जे भी आपका 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ पुट जे इज इक्वल्स टू 1, पुट द फॉर्मूला b into 1 plus 1 centimeter inverse, so you will get 2b centimeter inverse. So when j is equals to 1, rotating molecule is in the least energy level. Clear? When j is 0, there will be no rotation. When j is equals to 1, it is the least level. So now just same way you can calculate. If the value of j is 0, you will have 0, 1, 2b centimeter inverse. If it is 2, then you will get 6b, 3, 12b, 4, 20b, 5, it is 30b, 6, it will be your 42b. You can just put the value in this formula and you can calculate it. I hope up to here it is clear. Now similarly, अभी हम now we will calculate the energy labels, their spectral lines, frequency of the spectral lines. So students, हमको क्या, हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है, ई जे इज इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1। तो आपको सपोज करिए हमको करना है सॉल्व, 0 से 1 पर जाना है, 1 से 2 मीन्स ट्रांजिशंस में कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम जे इज इक्वल्स टू 0 टू जे इज इक्वल्स टू 1 पे जाना है ना, तो ये आपका कौन सा लेवल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्राउंड एंड दिस इज अवर एक्साइटेड स्टेट। तो आप कैसे सॉल्व करते थे, आपको याद है ना, जनरली आप कोई भी ट्रांजिशंस बताते हो, E1 से कहाँ जा रहे हो आप, E2 पर, एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। मैं समझाने के लिए E2 E1 लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, J2 J1। तो आपका J1 कितना है बेटा, 0 है, और J2 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ जस्ट वी हैव टू पुट दिस इन द फॉर्मूला। तो जब हमारा E2 माइनस E1 होता था, तो सिमिलरली जब हमें डेल्टा J कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, J2 माइनस J1। क्लियर? तो आपने क्या कर लिया, J1 कितना दे रहा है आपको, वो J1 इज इक्वल्स टू 0 दे रहा है, और J2 कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। क्लियर? अब आपको पुट करना है, तो जस्ट हम लोग इसमें हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमारा यही इक्वेशन रहेगा। तो हमने इसको कर दिया Ej2 Ej1। तो फर्स्ट के लिए हमने क्या लिखना है, J2 कितना है, 1 है, तो आप पहले एक बार इसको उतार लीजिए, Bj इंटू जे प्लस 1 माइनस Bj इंटू जे प्लस 1। अब आपको ये दोनों जो J टर्म्स है, एक को J1 कर दो, एक को J2 कर दो, तो आपको Aj2 माइनस J1 करना है ना, तो Bj2 माइनस Bj1। अब आपके पास क्या वैल्यू है, J1 की वैल्यू 0 है, तो J1 में आपको क्या रखना है, 0 रखना है, और J2 कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो इधर आपको 1 लिखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हमारे पास डेल्टा Ej आ जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 1 + 1 2, एंड 2 करेंगे तो 2b माइनस होल टर्म इज 0, सो यू विल हैव ओनली 2b सेंटीमीटर इनवर्स। सो जब हमारा ट्रांजिशंस 0 से 1 पर हो रहा है, J इज इक्वल्स टू 0 टू J इज इक्वल्स टू 1, तो हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल वे में इधर दिया है मैंने, ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to J1, the energy will be absorbed and the difference between the two energy level will be calculated as, so you will get 2b centimeter inverse। इसी टाइप से आप रख के कैलकुलेट करोगे अदर्स के लिए, तो आपको जब ट्रांजिशन 1 से 2 पर होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 4b, जब ट्रांजिशन 2 से 3 में होगा तो 6b मिलेगी, जब 3 से 4 में होगा तो 8b मिलेगी, जब 4 से 5 में होगा तो 10, when 5 to 6 होगा तो 12b। बट द थिंग इज कॉमन इन दैट, इनका जो स्पेसिंग रहेगा ना, आप इनको ड्रॉ करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 2b 4b 6b 8b, डिस्टेंस इनके बीच में कितना कॉमन है, 2b, द स्पेसिंग इज इक्वल 2b। सो दिस टाइप यू विल गेट द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। आई होप आपको समझ आया होगा, जैसे मैंने इसमें सॉल्व भी किए। अगर आपका ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, 4b सेंटीमीटर इनवर्स। सो यू विल गेट फॉर फर्स्ट टू 2, 1 से 2 में कितना मिल रहा है, 4b सेंटीमीटर इनवर्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर हम इसी इक्वेशन को
अगर हमें शॉर्टकट तरीके से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं अपन, एनर्जी की जगह हम न्यू बार भी लिख सकते हैं, न्यू बार जे टू जे प्लस वन, मीन्स अगर 0 है तो 0 प्लस 1 1, मीन्स 0 से 1, 1 से 2, तो व्हाट इज द कॉमन फार्मूला, आप क्या लिख सकते हो, न्यू बार और ई जे इज इक्वल्स टू 2b इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आपको कैसी वैल्यूज मिल जाएंगी, 2b 4b 6b 8b 10b 12b कॉमन। सो सेम वे अभी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा था हमको जब हम ऊपर जा रहे थे ना, जब हमारा ट्रांजिशन हम ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, और अगर सेम अगर हमारा रिवर्स हो जाएगा, मीन्स हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमको कैसा मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसी फॉर्मूले को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ईजिली आपके लिए। सपोज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझने के लिए कि हम ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जा रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया, बी जे इंटू जे प्लस 1। ओके, तो अगर जब हमने फाइनल स्टेट में क्या लिख रहे हो आप, जे की जगह पे क्या लिख रहे हो, जे प्लस 1, और इनिशियल स्टेट में क्या लिख रहे हो, ग्राउंड स्टेट में क्या लिख रहे हो, जे इज इक्वल्स टू जे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बी जे प्लस 1 इंटू, आपको क्या लिखना है बेटा, आपको वैल्यू उसी में पुट करनी है। हमारे पास क्या इक्वेशन है, ई जे इज इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1। तो एक बार आपको जे रखना है, क्या फाइनल वाले में रखना है जे की वैल्यू जे प्लस 1, और इनिशियल वाले में रखना है जे की वैल्यू केवल जे। तो हम पहले सॉल्व करेंगे फाइनल वाला। फाइनल वाले टर्म में हमने क्या बोला है, जे की वैल्यू कितना रखोगे आप, जे प्लस 1। तो इधर पर लिखेंगे आप बी, जे की जगह क्या रख दिया, जे प्लस 1, फिर जे प्लस 1 रखना है तो जे प्लस 1 प्लस 1, माइनस ग्राउंड स्टेट के लिए जे की जगह केवल जे रखना है तो ऑलरेडी है, तो जे इज इक्वल्स टू माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। सॉल्व करिए इसको आप, क्या हो जाएगा आपका, जे का मल्टीप्लाई देन 1 का मल्टीप्लाई, सो जस्ट ओपन इट, सॉल्व इट। सो व्हाट यू विल गेट, जे स्क्वायर प्लस जे प्लस 2 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1, देन you will get 3j plus 2 minus bj into j plus 1. then what we can do, j कॉमन ले लेंगे आप इधर पे, सॉरी b को कॉमन ले लेंगे, so you will have j square plus 3j plus 2, then open the bracket, so minus j square and plus j. so again we will solve it, so what, j square plus and minus j term will cancel out each other, and 3j minus j you will get 2, and again sorry 2j मिलेगा प्लस आपका 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इधर पे हमने कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, b इंटू 2j प्लस 1, हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 2b इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्म में हम शॉर्टकट, अगर मीन्स आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, तो अगर हमें पूरा लॉन्ग कट नहीं जाना है तो हम सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज अवर म्यू जे टू जे प्लस 1 is equals to 2b into j plus 1 centimeter inverse. Thanks for watching. Do subscribe the channel if you have not subscribed the channel. Hope आपको ये वीडियो